सब्सक्राइब करें इंडिया फोरम्स हिंदी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए। तहे दिल से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। वार्म वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रसेनजीत चैटर्जी। जितनी तारीफ उतनी कम, प्रसेनजीत चैटर्जी, लेडीज एंड जेंटलमैन। Warm welcome, sir. Wow, I must say that they're really lucky, and you'll start aging backward now. ये जो आपको आशीर्वाद मिल चुका है सर, पहली बात warm welcome. It's always good to see you, you know, your energy and the aura that you carry. और जो आपका aura है, energy है, वो शो के ट्रेलर में दिख रहा है. Warm welcome. क्या कहना चाहेंगे हमारी audiences को? Good evening, and I think thank you so much for coming to this Kabhi Neem Neem Kabhi Shahid Shahid की जो family है. We all welcome you, and I've been part of this family. So Enter family is sitting here, and of course हमारे production house हैं and Idea Stations Productions. So उनकी तरफ से और Star Plus की तरफ से आप लोग सभी को बहुत बहुत warm welcome. और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ. What I really want to say that before I start talking, I think I must talk to the person जो हमारे जो शो हैं, उनके जो क्रिएटर हैं, उनके जो कहानी जिसके मतलब वो है नहीं आज हमारे साथ, she is in Calcutta. So I just want her to be talking to our press media friends so that they know a bit more about the story and the thoughts. But I'm very lucky to have an excellent team, which I want to talk about them later on. So अगर हम लोग प्यार से उन्हें राखी दी कहती, क्या बात? Everybody talks about Rakhi in Kolkata, but she is Shashwati Ghosh. So if you can talk to her. Absolutely. I think सर आपने कहा है तो फिर बिल्कुल. I think let's hear out from the And my director, the head of the family. wow. And Shweta ji, the creative director. And I must call my partner Shrimantu Chatterjee on stage for a second. Yeah, he is my partner. He looks after the Enter television section of our company, and he's really working hard. Everybody is working very hard. And a bunch of great actors, very senior actors, very young actors. And I think that's the combo we have on the stage. It's not possible, maybe they all will not fit on the stage, but I first of all need to call the head of the family. Yes. हमारे दादाजी. Wow. And one of my favorite actor, Darshan ji. And अभी अपना राखी जी ने मतलब she told about the contrast to characters. So हमारे जो है ना, whom do I call first? The family sitting there. A lot of people which I am going to talk about them later on. Thank you so much. We'll surely call everybody on stage. But Dadaji and the entire family, I want you to please have कृपया विराजमान हो जाएं so that हम आपसे कुछ बातचीत करें और हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है वो भी एक्साइटेड है बहुत सारे सवाल लेके. और बट उससे पहले एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा. So we have यूवी कथा दादाजी को पहले पाए लागू आशीर्वाद ले लें. He is a big man financially and otherwise तो खैर है ही. And yes, I think one question, you know, I'm sure media fraternity family members would definitely have in their heart. And दादा सवाल आपसे है और I'm sure पूरा देश जानना चाहता है. The whole nation wants to know. You've acted, you've of course produced, and you've launched many, you know, newcomers. आपने पहला मौका दिया ना सिर्फ एक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, डायरेक्टर्स को, मगर पहली बार इतिहास में ऐसा होने जा रहा है कि you're producing a हिंदी टेलीविजन शो. So आखिर क्या चीज़ आपको खींच के लेके आई that you coming up with this very different, one of the, you know, upcoming Gen Z show on Star Plus? Let me be very honest. Please don't call me producer. These are the people who are sitting here as the producer of this particular show. Wow. I'm part of this team. I never consider myself as a producer because end of the day I've been working for last 40 years. And what we really learned about it is a bit of acting. And I think that's what we have been doing for last 40 years. And I've
with your blessing, I have completed around 348 films as an actor. So I think I will love to call myself as an actor than more than a producer. Yes, if you talk about production, it's my first Hindi production in a way, but it's not that because my dad has been working in Hindi film from 1960, from Bisalba. So my connection with Hindi industry is nothing new. And now all over the world, all over the country, people are talking about Pan India. So why not? Why Pan India is only for film or Pan India is only for OTT? It has to be for television because we have a lot of talents all over the country. And I think television rich is high. It's more. So I think the talent from Bengal, from Marathi, from Punjab, from Gujarat, everybody can come and do television. So that's a kind of a thought we have thought, and thanks to Star Plus. So as we just spoke to Rakhi Di, she is one of the finest storyteller we have. So that's, I think, is the concept to come to Hindi and do some good work. And my association with Star was like very long. I must say that I think in Bengali especially, I'll say that Star Jalsha had produced a show where my company, NIDS Creation, was the producer. And I was blessed that that was television serial show was created and directed by late Ritu Porno Ghosh, which was a record. Wow. So I have a huge, long relationship with Star family. And I think we are looking forward to do something. I'm not saying it is, kabhi nahi dekha. Ye hota nahi kabhi. Everybody says we are doing something which has never happened. Cinema sabne kahin na kahin ek hi cheez bana diya. But we are trying to do something which is fresh, which is something little meaningful, which, you know, what I think when we produce, we try to do something which is running, like this kind of a thing. I think the entire team is trying to do something which is something different from the regular show, something little real, something which is close to your heart. And as we are saying, this is a show with a lot of senior people, and it's a show with a lot of younger people. So I think it's a very refreshing and very different kind of a show. Indeed. Thank you. Sir, very nicely said. I think ये सवाल सबके mind में था, मगर एक सवाल और है, you know, I think, and you said, you know, people all across India know you, but I'm sorry, but I think people across the world know you. I was in US, I was in Dubai, people always, you know, talk about your skill, your craft. So please once again give it up, ladies and gentlemen, for Dada. He is gentlemen for you भी, इनको हमने तमाम किरदारों में देखा है, एंड स्टार प्लस के साथ आपका एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है. हर एक माँ चाहती है कि मुझे ऐसा बेटा मिले. हर वैलेंटाइन पे लड़की इनकी डीपी लगाती है, मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए. और फाइनली कथा जो है उनके साथ क्या कथा होगी वो हमें जल्दी पता चलेगा, कभी नीम कभी शहद में. मगर यूवी, हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर दिस कैरेक्टर एंड क्या होने वाला है? इफ यू कैन जस्ट स्पिल द बीन्स, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत. और स्टार के साथ अब और क्या क्या होगा? Okay, so first of all, congratulations to everybody on this beautiful journey that we are going to start. And I welcome all the media fraternity that has come here. And आज आप हमारे इस जश्न में शामिल हुए हैं हमारे शो की लॉन्च पे. स्टार प्लस के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी पुराना है एक्चुअली. आई डिड अ शो विद देम, ये है चाहते हैं, and it went on to be one of the most successful shows for Star also and for me also, and it was a turning point in my career. और उसके बाद 4 साल तक किया मैंने वो शो. I think more than 1,000 episodes. Wow, 1,000 episodes. And अब मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ विद कभी नीम कभी शहद. और आई होप कि ये शो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जैसे कि सर ने कहा कि आई होप दिस गोज ऑन फॉर 2,000 एपिसोड्स. और हम सब फैमिली मेम्बर्स, जितने भी कास्ट क्रू, सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं. एंड या दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट शो. जो हमने आज तक जितने भी शोज़ आपने टीवी में देखे होंगे, उसमें क्या होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं अपने कैरेक्टर की बात करूँ, द मेल लीड इज ऑलवेज पोर्ट्रेड टू बी दिस एंग्री यंग मैन, अ टिपिकल वन डायमेंशनल कैरेक्टर जिसको बहुत गुस्सा आता है, एंड ही जस्ट
he's mysterious, he tries to keep his emotions to himself, and बहुत ऐसा कैरेक्टर होता है. But this guy is not that. ये बिल्कुल वैसा नहीं है. He's totally opposite of all this. और ये बहुत ही he's a fun guy, he's a chill guy, he loves his family, he loves his cousins, बहुत मस्ती करता है उनके साथ. He's a celebrity chef जिसको सब लोग बहुत प्यार करते हैं. He has a huge massive fan following, he's a vlogger, और he doesn't hold any grudges against anybody. वो angry young man बिल्कुल भी नहीं है. बहुत ही fun chill character है. बस कभी कभी कथा उसकी लाइफ में आके उसको थोड़ा परेशान करती है, जो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है. बट ही कैन लिव विद दैट. एंड उसके जो यंग कजन्स हैं, ही हैज़ दिस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देम, क्योंकि उसको शायद वो प्यार नहीं मिला है जो वो चाहता है कि उनको मिले, और ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज कजन्स. सो यंगस्टर्स जो भी हमारी फैमिली में है, वो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. they have a really great bond. But at the same time जो elders है फैमिली के, उनके साथ तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट है यूवी और उसकी गैंग का, स्पेशली विद द ग्रैंडफादर सर के साथ. सो ही हैज़ दिस सेंस ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर. तो कभी ना कभी उनके नोक झोंक चलती रहती है और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं घर में. बट स्टिल तब भी वो ही इज़ नॉट डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हिम. He tries to avoid conflict. Right. I see Dadaji smiling on that. तो दादाजी अभी तो स्माइल कर रहे हैं, लेकिन यूवी के सामने स्माइल बिल्कुल नहीं करते. He's waiting to go backstage and show some love. So ये है जो यूवी का कैरेक्टर है. और फिर उसके इस कलरफुल लाइफ में कथा आ जाती है, जो उसकी लाइफ थोड़ी सी चेंज करेगी फॉर द बेटर. Wow. Give it up, ladies and gentlemen, for our hero. And then of course we talk about the heroine, Katha. बहुत एक deadly combination है, जो आज के ज़माने में in 2025 it's very hard to see. So we want to know Katha कि आप भी real life में ऐसी हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी आपको कथा के किरदार में आने के लिए? कथा एक बहुत ही स्वीट लड़की है. शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. आई थिंक हर एक इंसान में वो कथा होता है अंदर ही, बट आई थिंक नाउ डेज वी ट्राई टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स टू फिट इन. तो मुझे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई. हाँ, थोड़ी बहुत हुई, जो हमने वर्कशॉप्स एंड ऑल में काफ़ी काम किया. एंड हाँ, बहुत ही सीधी सादी लड़की है, थोड़ी सी सुपरस्टिशियस है, गॉड फियरिंग है, और अपने छोटी सी उसकी जो वर्ल्ड है, पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती है. उसके जो मामा मामी हैं उनसे बहुत क्लोज़ है. तो इतनी डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई, बट इट वाज फन. क्या बात है, इतने प्यार से कोई भी कथा सुनाएगी तो फिर क्या कहें, जोरदार तालियां कथा के लिए हो जाए यार. ये कथा जो है जल्दी आप देखेंगे ऑन स्टार प्लस, और ये क्या स्टोरी होने वाली है, विल ऑल गेट टू नो दैट. आई एम श्योर वी ऑल वेरी एक्साइटेड, मगर बहुत एक्साइटेड हैं और थोड़े डरे भी हुए, बिकॉज अब बारी आ गई दादाजी की. दादाजी पायला को नमस्कार, पैरे पड़ना. दादाजी नमस्कार. हाँ, आपकी आवाज़ में मतलब इतना भारी बना, मैं तो लगता है कि मैं स्टेज से अरे गिर ना जाऊँ मैं. प्लीज डोंट डू दैट. राइट. सो दादाजी, हमें सुनने में आया कि आप में और यूवी में इतना प्यार है, और शो से पहले भी जो प्यार था वो हमें खिड़कियों से सुनाई दे रहा था. सो इज दैट ट्रू? बहुत प्यार है आपके बीच में, एंड शो में तुम देख ही लेंगे. वेल, जब शो की बात करें तो शायद अगर प्यार है तो वो बहुत दिखता नहीं है कहीं. क्योंकि दादाजी जो अपने ही एक टाइम एंड स्पेस में बंधे हुए हैं, हर एक इंसान का ऐसा होता है. वन इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वंस ओन टाइम्स. एंड वो हालांकि अपनी फैमिली से, पूरी फैमिली से बहुत ही प्यार करते हैं. शायद उनकी अपेक्षाएं इतने सारी हैं कि जो जब उनका पोता वो करने से इनकार करता है, या तो ये कहता है कि भाई आपके सपने आप मेरे थ्रू मत जियो, तो ऑफ कोर्स उसको बहुत बुरा लगता है. क्योंकि ही इज नेवर, आई डोंट थिंक ही हैज़ हर्ड अ नो फ्रॉम एनीबडी फ्रॉम हिज ओन फैमिली अबाउट वॉट एवर ही वॉन्ट्स हैपन्स. इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन, दैट काइंड ऑफ अ फैमिली. और ये पोता आके इफ इज यू नो कॉकिंग अ स्नूज एट हिम, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है. कभी कभी नहीं, आई थिंक हर बार.
हमेशा हर बार। हाँ so yeah, Dadaji is more neem than Shahid and but उनका जो कड़वाहट है ना वो एक नीम की तरह। हाँ मतलब वो End of the day आई एम वेरी श्योर कि इट इज वो गुणकारी होगा ही, ऐसा मैं मान लेता हूँ क्योंकि मैं यूवी को अभी तक तो मैंने उसे बहुत ही डांटा है क्योंकि उसने ऐसी बहुत सी हरकतें की है और लेकिन कहीं पीछे मुझे ख्याल है कि ये बंदा सुधरेगा, ही विल इम्प्रूव एंड ही ऑल्सो हैज़ प्रोबेबली स्टम्बल्ड अपॉन द करेक्ट पर्सन जो उसके ये मनमौजी पोते को सही रास्ते पे ला सके। तो हाँ, तो वो अभी आएगा आगे कैसे एक ओल्ड सोल आपने कहा जी। राइट, सो एन ओल्ड सोल इन अ Gen Z बॉडी एंड एन ओल्ड सोल इन एन ओल्ड तो जैसा कि ये पहला टीवी शो है आपका हिंदी का, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, क्योंकि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑलरेडी हिंदी में ऑलरेडी यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और दूसरा चूंकि दो जनरेशन के बीच आपसी मतभेदों की पूरी कहानी है, तो क्या आपको लगता है कि जेन जी ज़्यादा सेंसिटिव है पुरानी जनरेशन से? मैंने पहले बोल दिया कि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, तो जो प्रोड्यूसर हैं हाँ मैं पार्ट ऑफ दिस टीम में हूँ, और प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजिंग ये था कि हमें ये पूरा जो प्रोजेक्ट है जिस हिसाब से हम लोगों ने उस कहानी सोचा है विद द हेल्प ऑफ द एंटायर टीम, इसको हमने और स्टार इवन इसको हमने सही तरीक़ा से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी चैलेंज है क्योंकि कहानी जो आती है ना उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं, एक्टर्स भी बाद में आते हैं, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स होते हैं। और मुझे लगा था कि ये शो ऐसा ही 2, 3, 4, 6 एक्टर्स लोगों में से नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं और बहुत सीनियर एक्टर्स भी। हम लोगों ने बहुत लंबा 3 महीने तक वर्कशॉप किया जो टेलीविज़न में शायद कमी होता है, राइट? सो एंड थैंक्स टू दी सीनियर एक्टर्स जो ये बच्चों लोगों के लिए टाइम निकाला, उन लोगों के साथ बैठा घंटों भर, और सेट पे आने से पहले उन लोगों की जो कनेक्शंस हैं, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये आर्टिफिशियल है। मैंने पहले ही बोला कि हमारे जो मेरा पर्सनल स्कूलिंग मोर ऑफ ए फिल्म, तो हम लोग कुछ चीज़ें बिलीव करते हैं, तो उसे हमने ट्राई किया। हमारे टीम, हमारे डायरेक्टर, हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर बहुत दिनों से मेहनत करके ये शो हमने शूटिंग चालू किया। ऐसा नहीं है कि ये हमारा टारगेट डेट है, इसको टेलीकास्ट करना है, कल से शूटिंग करें, ये नहीं है। और सेकेंडली आपने पूछा है मेरा जो 2 जनरेशन, देखिए मेरा घर में भी 3 जनरेशन है। मेरा डैडी है अभी तक, मैं हूँ, मेरा बेटा है, इज़ जस्ट 20 ईयर्स। वो जनरेशन गैप होता है, बट तो मुझे लगता है ना हर आदमी हर जनरेशन का एक प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट होता है, और वही खूबी है, वही लाइफ है। और समय के साथ हाँ, पहले क्या होता था, पहले आई थिंक हमारे समय वो टाइम लेता था, मतलब 15 साल, 20 साल, 30 साल के बाद चेंजेस आते थे। अभी चेंजेस हैज हैपेंड इन टेक्नोलॉजी, राइट? तो अगर मैं अभी अपने बच्चों को कुछ बोलूँ ना, बोले है फालतू बोल रहे हो तुम, अभी बताता हूँ ना तुमको। सो बट मेरे को वो भी अच्छा लगता है ना कि आज के ज़माने के बच्चे लोग जाते हैं डेट करने के लिए, फेसबुक पे डाल देते हैं, एंड दे टेल इट टू द वर्ल्ड। आई अप्रिशिएट दैट। हम लोग छुप छुप के बहुत सारे चीज़ करते थे, तो वाई? सो अप्रिशिएट और रेस्पेक्ट ना दोनों तरफ से ही है। उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सो आई थिंक हमारे इस शो में ये जो 3 जनरेशन की कहानी है वो जो रिफ्लेक्ट करेंगे, और उसमें ज़्यादा जो है ना एंड ऑफ द डे जो है वो बॉन्डिंग और प्यार ही है, और लड़ाई भी वो प्यार से ही होता है। सो दैट इज द शो ऑल अबाउट। आई थिंक दैट्स द रियल लाइफ एंड दैट्स द फैमिली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकिता पाठक। ग्राउंड ढूंढना होता है, ज़रूरी नहीं इट्स ऑल अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। So I think that's a very highlighted point in our show. And जिस तरीके से हमने शूट किया, it's very fun, very fresh. हमें भी करते हुए शूट्स, हाँ सीन्स करते हुए बहुत मज़ा आया, तो I'm sure कि ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा। इस शो में आप
प्ले कर रहे हैं, शेफ का किरदार आप मूवी निभा रहे हैं, तो आपने शो के चलते, इस कैरेक्टर के चलते क्या कुछ सीखना पड़ा, कुछ नहीं सीखा? एक्चुअली मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर के लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट है वो वही है कुकिंग का, जिसका मुझे कोई भी इल्म नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू कुक एंड मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लोगों की हु कैन कुक फूड, हु कैन कुक गुड फूड. तो एक तो होता है कि यू कैन कुक फूड, दूसरा होता है कि यू कैन कुक रियली गुड फूड. जो वो कर सकता है ना, आई थिंक इट्स अ सुपर पावर. तो ये सब लोग नहीं कर सकते ऑनेस्टली. एंड बिलीव मी, आई ट्राइड इट सो मेनी टाइम्स टू कुक फूड, बट मुझसे नहीं हुआ. हमेशा कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया. तो ये एक आर्ट है. यस, थोड़ा नींद थोड़ा शायद हो गया मेरा. सो इट्स लाइक इट्स अ टैलेंट, जस्ट लाइक एक्टिंग है, सिंगिंग है, इवन कुकिंग इज एन आर्ट. आई थिंक मैंने बहुत पहले एक इंटरव्यू देखा था एक एक्टर का, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इसको रिलेट किया था. उन्होंने कहा था कि एक्टिंग और कुकिंग ना, वो कुक भी थे और एक्टिंग भी बहुत अच्छी करते हो. तो उन्होंने कहा था कि ये तो सेम चीज़ें अगर आप मारेंगे ना, जिसमें उसमें जो प्रोसेस लगता है इसमें भी वही होता है. द काइंड ऑफ मेटिक्यूलस थिंग दैट यू हैव टू डू इन एक्टिंग, इन योर नुआंसेस. वैसे ही आपको ना खाना बनाने वक्त भी आपको उतना सही मेजर का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं नमक ज़्यादा हो गया, कम हो गया. ज़्यादा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा, कम हो जाएगा तभी खराब हो जाएगा. वैसे एक्टिंग में भी होता है. आप ज़्यादा करेंगे तो ओवर एक्टिंग होती है, कम करेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि आए तो कुछ एक्टिंग ही नहीं कर रहा है. तो वो एक थिन लाइन है, राइट. तो ये दो चीज़ें. So I think cooking is as difficult as acting, but I'm trying to learn it. अक्सर जब प्लेन में ये मिलता तो हमारी नींद आ जाती, ये लगा के आदत नींद उड़ने वाली है. So क्या होने वाला है, that I'll explain you. I'll add these blindfolds to you. ठीक है, ये मैं आपके आंखों में काली पट्टी लगा दूंगा, राइट. उसके बाद आपके सामने बेहद ही टेस्टी, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा खाना जो ऑर्डर दिया जाएगा. आपको गेस करना है कि वो क्या है. Excited? Are you foodie? Otherwise, absolutely. So I'm sure you'll have an amazing time, playing this game. Are you also foodie? No, I'm not foodie, but yeah, let's see, let's try. Right. Partner है ना? Yeah, बिल्कुल. So, yes, I think let the our dishes will come here. Yeah. Okay, right. Let's start with it. हम blindfolds जो है, if you want my help, I can help you with the blindfolds. Yes. We are all set. सर कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. सर इनके दांत के बीच का गैप दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा. Sorted. हाँ ले आइए. Safe है. Right. बहुत ही बढ़िया. आप यहाँ पे इसको हमारे जो दादाजी हैं HOF के सामने रख दीजिए. So बिकॉज शो में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, आप सब जानते हैं. तो ऐसे में यहाँ भी सबसे पहला ट्विस्ट ये है कि जो हमारे दादाजी हैं यानी कि HOF हेड ऑफ फैमिली, वो ये टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे हमारे दादा को, और वो सुन के गेस करेंगे कि ये क्या खा रहे हैं. और या सो ट्विस्ट एंड टर्न्स होना बहुत जरूरी है लाइफ में. यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आई नो, बट आई एम श्योर यू विल रियली एंजॉय दैट. सो हमारी जो मीडिया फ्रेटर्निटी है, फैमिली मेंबर्स हैं, ये हमारी ऑडियंसेस हैं, ये बताएगी क्या है. बट आपको थोड़ा यू हैव टू होल्ड योर हॉर्सेस, सब कुछ बताना नहीं है. सो वी ऑल सेट? आर वी ऑल रेडी? कम ऑन, मेक सम नॉइज, एवरी एनर्जी. आर वी रेडी? ये सो दादाजी, मुझे लगता है कि दिल पे पत्थर रख के मुझे खिलाना पड़ेगा, बिकॉज ये मेरा फेवरेट है. नॉर्थ इंडिया से है ना, तो यस बहुत पुण्य कमाने जा रहा हूँ मैं ऐसे. दादाजी थोड़ा सा ये आपको कम क्लोजर. सच में नहीं दिखाई दे रहा ना मान से. राइट. सो दादा यू हैव टू गेस. पूरा नाम ही लेंगे, स्लोली एंड स्टेडीली यू हैव टू गिव द हिंट्स टू दादा एंड देन प्रोसेस दादा को मुझे लगता है खुशबू से ही पहचान लेंगे इसको. ओके, सो हियर इज द माइक. जी. Okay, so as he said, it's a North Indian part of a very famous North Indian dish which goes together. Yeah. ये जो है वो इसका जो काउंटर पार्ट हाँ. वो
एक उससे पेट बाहर आ जाता है। हाँ, वो is a big substantial what you call in Bangla रुचि। ये बहुत घुस जा रहा है। हाँ, तो उसके साथ जो होता है बहुत ही अच्छा पदार्थ। क्या बात है, पदार्थ, वाह। I mean, I don't know, मतलब मेरी हिंदी है ना बहुत ही पांडित्य शैली वाली है, Right, क्योंकि वो मैं पाठ्य पुस्तक में पढ़ा तो सोया उसके साथ जो है वो एक तो हाँ बता दूं कि एकदम शुद्ध वेजिटेरियन है। हाँ। और वो जो मैंने कहा उसके साथ खाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। एक छोटी सी हिंट ये भी दे रहा हूँ कि इसको खाने के बाद नींद बहुत आती है, मतलब कुछ लोगों को बेहोशी भी हो जाती है ना सर? आप बहुत बार बेहोश हुए लगता है। मैं तो नहीं हुआ। ये भाई साहब हमारे यहाँ पे। So, and इसका एक फॉर्म है जो घोड़ों को खिलाया जाता है। ओह सर, आई थिंक लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि क्या चीज है जो घोड़ों को खिलाई जाती है सर? यू एनी गेसेस सर? ह्यूमन बीइंग्स भी खाते हैं। यहाँ सर को कंफ्यूज कर दिया आपने। But I was right. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। वो तो पकड़ने आएगा तो नॉर्थ इंडियन है ना। हाँ। सर ने इतने अच्छे अच्छे हिंट्स दिए कि मेरा काम और आसान कर दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के। आप ही बोल दो ना। सर एक गेस्ट कीजिए, एक या दो गेस्ट तो बनते हैं। ये इंसान भी खाते हैं, घोड़े भी खाते हैं और अरे नहीं, पूरी के साथ खाते हैं। पूरी के साथ। और कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं। और कोई भाजी जी थोड़ा दूर है सर जी। थोड़ा ही दूर है। हाँ। क्योंकि वो वेजिटेबल नहीं है जो Right. भाजी बोला। अरे यार, एक बंगाली को आप वेजिटेरियन आइटम के बारे में Right. पूछे कि तुम इतना ही कंफ्यूज आई नो सर। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ और बंगालीज मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत जलील हुआ उनके घरों में जाके। यहाँ पे कुछ बोलते हैं ना अमृतसर क्या? ये हाँ? हमारा दिल बिल्कुल सर के साथ है, हम चाहते हैं कि आरसीबी जीते आज। नहीं, वी वांट सर टू विन यार, सर आरसीबी थोड़ी है। हाँ, और नॉट गेटिंग इट। ओके, भटूरों के साथ खाते हैं सर, इससे ज्यादा तो वो रुचि जैसा मतलब पूरी बोला सर भटूरा पूरी के साथ खाते हैं, इससे ज्यादा हिंट तो उसके अपने जवाब ही दे दूंगा। छोले नहीं रहे, छोले। ओके सर, दिल्ली लास्ट ऑप्शन सर, इसको अगर लस्सी के साथ खा लो तो बेहोश हो जाता है। छोले भटूरे और लस्सी के साथ खा के सर इंसान बेहोश हो सकता है, कोई किडनैप भी कर सकता है। इसका अगर नाम बोले तो उसके साउंड से इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म छोले मल्टी स्टारर फिल्म, सबसे बड़ी फिल्म का नाम है। कितने आदमी यस यस, माइक ड्रॉप। फाइनली जोरदार तालियां आप सबके लिए। सर व्हाट अ लवली व्हाट अ लवली राउंड इट वाज। आई थिंक सबसे ज्यादा